Oh no, I'm in the library, so I have to like speak a bit low वॉइस के अंदर, वरना फिर वो बंदा आ जाता है निकालने. बट एम आई ऑडिबल क्लियरली या नहीं? अगर नहीं है तो आई कैन लाइक चेंज द प्लेस, कोई मसले की बात नहीं. चलो गुड, लेट्स स्टार्ट ऑफ. अच्छा सो ऐसा है कि जो हमने लास्ट टाइम एंड किया था ना, वी हैड दिस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन व्हाट्स दिस होल pseudocode designing and everything all about. सही है. Oh no, we weren't here. तो नीचे थे. Happened. Oh yes, 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 yes. We were up here. मैं भी कहूँ ये तो बहुत पुरानी चीज़ है. But we started off with chapter number 8. We saw how you can kind of declare variables, but at the same time I did identify कि यार variables तो हम वो करेंगे, but हमसे एक चीज़ हमने करनी है जो कि हम next class में अच्छे से समझेंगे, which is basically what are the kind of data types that exist. Now when I say the word data types, आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि for me, if I see the number 2 up here, आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज समथिंग जिसके साथ मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. आई कैन ऐड समथिंग इनटू इट, आई कैन डिवाइड इट विद समथिंग, आई कैन काइंड ऑफ परफॉर्म एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन इट, राइट? Just like that, your computer, whenever you kind of create a variable, you need to specify the data type, because you can sort of use a value for calculations. You can use a value for maybe storing data, like for instance अगर मैं ये लिखना चाहूँ hi, so now you cannot do like hi plus 2, right? You cannot do it this way, because hi is something which is a text, whereas 2 is a number. So when we have such errors, the compiler or your computer program is kind of unable to decide upon कि यार बंदा करना क्या चाह रहा है. सो इसके लिए जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्रामर्स कोई चीज़ बनाते हैं ना, एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद सूडो कोड फॉर यू गाइस, you need to understand that you have to always declare the specific variable. Whether if I'm making use of a variable known as age, or if I'm kind of making a variable with the name of, for instance, final money, final money नहीं करते, let's do it final bill, सही है. Or if I, let's say, do it like birthday wish, whatever kind of variable I introduce in my program, I always have to declare at the start कि यार इसके data type क्या है. So for that purpose, we have the declaration part, very important. And declaration का मैंने आप लोगों को general ये बता दिया था कि if we have to do it for a variable, we're going to write the keyword declare followed by its name, and then using a colon. After colon, we need to write the data type. So we will be starting off today's class having a discussion on the data types which we need to be aware of. So data types अगर आप लोग से जनरल पूछे तो आप लोग को बहुत अच्छे हद तक पता भी होगा, क्योंकि हम डेटा टाइप्स का बेसिक मकसद ये होता है कि इट enables us to like store the data in the appropriate way. Like numbers can be stored as numbers, characters can be stored as characters. Then if we are aware of what kind of data is being stored in a specific variable, we can kind of manipulate it effectively. Like numbers can be dealt using mathematical operators, whereas characters can be dealt with the string manipulation method. So they kind of have multiple different sort of methods for each of the specific data type. And just like that, if we have a right data type mentioned at the start, it also sometimes have this automatic validation being taken place, which can allow you to correctly identify. Like अगर अभी आप लोग ना Python या कोई भी programming language खोलो, you kind of ask the user to give an input variable, but you tend to write something, a character like maybe ABC, so it's going to be giving you an error. See, so it's important you understand कि आपने हमेशा जो भी data, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो ना, तो आप कंप्यूटर को बताओ कि यार we as programmers expect the user to input this sort of data. So if for instance the programmer, the user does not input that kind of data, so the computer can pose an error कि यार आपने ये गलत किया, try to do it again. So starting off, the very first data type which we all are well aware of is integer. See, now integer is basically any positive negative whole number, positive negative whole number. So अगर हम कोई इस तरह का वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर we might be storing integers, maybe like if we create a variable with the name age,
and I'm storing like 19, or maybe if I have to create a variable with the name quantity, and I have to say like maybe 5 quantity for buying like 5 books, so that can be 5 quantity. इसी तरीके से anything which can sort of store whole numbers comes under the integer point. से फिर उसके बाद हमारे पास जो second data type exist करती है ना, that is basically known as real. अब रियल क्या है? रियल ये है कि अगर मैं आप लोग को ये बोलूँ कि आई हैव टू डू, यू नीड टू क्रिएट अ कैलकुलेटर, एंड let's say the calculator, definitely if we create a calculator and I do the calculation 10 by 4, I should be getting the answer as 2.5, right? But if I create a calculator based upon the integer model, then I cannot represent 2.5 because it is going to be converting it into an integer, so I can get the answer as 2. But 2 is not equal to the 2.5 which I need. So अगर मैंने कंप्यूटर के अंदर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कराना हो तो मैं उसके लिए कौन से डेटा टाइप को यूज करूंगा? So for that I will be introducing the real data type, which is basically a positive or a negative number with a fraction part. Number with a fractional part. सही है, मतलब एनी नंबर. अब ये जो 2.5 मैंने लिखा है, इसको अगर फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा जाए तो इट विल बी व्हाट? इट्स गोइंग टू बी 5/2. अब 5/2 कंस्टिट्यूट्स टू द सेम 2.5. लेकिन ये वही बात हमारे पास आती है कि काइंड ऑफ आप ये समझो कि कोई भी नंबर जिसका फ्रैक्शन पार्ट एग्जिस्ट करता है वो हमेशा डेसिमल नंबर्स में ही लिखा जा सकता है. सो इफ वी हैव टू राइट एनी सॉर्ट ऑफ सच डेसिमल नंबर, कोई भी इस तरह का वेरिएबल बनाना है जो कि डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करिए, तो उसके लिए हम डेटा टाइप रियल डिक्लेयर करेंगे. देन हमारे पास एक थर्ड है कि विच इज नोन एज कैरेक्टर के लिए चार. सही है. अब चार का सीन ये होता है कि इफ आई हैव टू लेट्स से स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, लाइक आप लोगों ने कभी देखे होंगे, they give you a question and then they say कि if you're a male just enter M, and if you're a female just enter F, right? So M or F, one of the two. So how does the computer kind of understand, like what if you write um, MA? So how does the computer know that you made an error up here? Because इसका तरीका ये होता है कि आप कंप्यूटर को बता देते हो कि you're going to be inputting a character, and a character is only a single word. सही है, a single word. So character और strings में ये फर्क है कि if I say A, B, C, और maybe a better example could be अगर मैं ये बोल दूँ hello, so इसके अंदर जो H है, this is one character, this O is a different character, this E is a different character. So हमारे पास ये characters आते हैं. सही. सो अगर इस कॉन्टेक्स्ट से इसको हम देखें ना, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ओके, इट्स लाइक दैट. तो अगर हमने सिंगल लेटर को रिप्रेजेंट करना हो किसी वेरिएबल के थ्रू, में भी ट्रू फॉल्स हो सकता है या कोई भी इस तरीके से, तो उसको हम उसके लिए हम करेंगे कैरेक्टर वेरिएबल डेटा टाइप से. सो व्हाट्स अ कैरेक्टर? इट इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट that is a single character. That is a single character. फिर हमें ये तो तीन पते लग गए. These are very easy. But then now we have other types of data types जो कि थोड़े से शायद आपको लग रहे होंगे कॉम्प्लेक्स. लेकिन अब देखो, हमने नंबर्स में ये देख लिया कि 2 किस तरह करना है. We saw how to write 2.5. We also saw how we can write the letter M. But what if I ask you to write या perhaps store the sentence or the group of characters mass in a specific वेरिएबल? अगर आपने मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक उसमें स्टोर करना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए यू नीड टू डिक्लेयर a variable with the data type of string. A string is in the world of computer science is basically a variable or constant that is several characters in length. सही है. सो मतलब string के मुख्तलिफ लेंथ्स हो सकती हैं. शायद एक string empty हो तो उसके अंदर कोई characters नेसेसरी भी नहीं है कि उसके अंदर कोई characters हो. But whenever I have to group multiple characters A, B, C, D, E, F, I am Mars. So अगर इसको हम देखें तो ये अलग अलग characters हैं. And also one important point you all need to understand is that computer deals with space as a character too. So if you kind of write it this way, ये and then like this, the examiner is going to assume that you gave a space character up here. इसीलिए if I have to start counting all this, इसको अगर मैं count करने लग जाऊं, it's going to be 1 2 3 4 5 6. This will be the 7th slot, 8 9 10 11 12 13 14 15 16. But if as a human you're kind of counting it, it's only going to be what? 13. So do know that your space character is always counted by the computer as a different character. So अगर हम जब भी string की बात कर रहे होते हैं ना, string is nothing else but a variable or a constant, a variable or constant
that is several characters in length. That is several characters characters in length. So यही बात हुई कि हमारे पास जब भी अगर आपने कोई इस तरह के वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आपने कोई डेटा स्टोर करना है, एज इन कोई सेंटेंस स्टोर करना है, तो व्हेन यू डिक्लेयर इट उस वक्त आपने बता देना कि इसके डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। सही है। फिर इसके बगैर हमारे पास एक लास्ट डेटा टाइप है जो कि शायद अभी इस मोमेंट पे आप लोग को समझ ना आ रही हो, लेकिन अगर मैं आप लोग को ये बोलूं कि भाई एक मुझे ऐसा वेरिएबल आप बनाओ विच कैन ओनली स्टोर टू वैल्यूज, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये बोलूं कि स्टूडेंट की मैंने अटेंडेंस लेनी है, अटेंडेंस, राइट? सो इफ आई क्रिएट दिस वेरिएबल प्रेजेंट, this is a variable, how many answers does it have? It could either be a yes or a no, right? We don't have any sort of other options in between. Like we don't have maybe, we don't have maybe was present yesterday, will be present. कोई सर्गे नहीं. We only have two options. It's either a yes or it's a no, right? So whenever we have only two scenarios, तो हम कर ये सकते हैं कि अगर हमने उसको प्रोग्राम करना हो ना तो हम उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करा देते हैं कि भाई जस्ट डील विद टू ऑप्शंस, एंड उसके लिए आपको सिर्फ या यस नो या फिर लेट्स से आप मेल फीमेल कर दें या फिर बॉय गर्ल कर दो या स्टफ लाइक दैट, व्हेन एवर यू काइंड ऑफ गिव इट ओनली टू ऑप्शंस और उसको मैंने डिक्लेयर करना हो इन अ प्रोग्राम, तो उसके लिए मैं क्लियरली शुरू में ही बता देता हूँ कि दिस इज समथिंग विच वी कंसिडर अंडर द बूलियन डेटा टाइप। सही है, बूलियन। सो इट्स लाइक BOOLEAN। इसको आगे जब हम सूडो कोड लिखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी व्हाट डू आई स्पेसिफिकली मीन बाय बूलियन, बट दिस इज व्हाट बूलियन इज ऑल अबाउट। सही। अब बूलियन का ये सीन है कि आपके पास अगर इफ आई हैव टू डिफाइन इट, तो यू आर गोइंग टू बी मेंशनिंग इट हाउ बूलियन इज व्हेन यू हैव, या बल्कि नहीं इस तरह लिख लो कि बूलियन का वी कैन राइट इट एज अ वेरिएबल और कांस्टेंट दैट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, a variable or constant that can only have two values. See, so we have these five data types जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी आपको सूडो कोड दिया जाएगा ना, यू ऑलवेज नीड टू इंश्योर कि आप शुरू में डिक्लेरेशन करें। एंड शुरू में डिक्लेयर करने का ये होता है कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि आप अपने प्रोग्राम में कौन से वेरिएबल्स यूज करोगे, उसी मोमेंट आपने आइडेंटिफाई कर देना है कि यार उन स्पेसिफिक उसके डेटा टाइप्स क्या होंगे। सो इट कैन बी लाइक, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी अ रियल नंबर, अ कैरेक्टर, स्ट्रिंग और अ बूलियन। सो ये पांच डेटा टाइप्स आपको इसलिए ये ओवर टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि व्हाट डू आई मीन बाय दीज डेटा टाइप्स। अब जब हमने डेटा टाइप्स देख लिया, हमने एक जनरल सूडो कोड का ओवरव्यू देख लिया, अभी हमने कुछ चैप्टर नंबर 8 के यूनिक चीज को डिस्कस करेंगे जो कि थोड़े से ऐसा है कि लोगों को शायद पता ना हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड string handling. See, before moving into the deep advanced concepts, I wanted to make use and discuss string handling. अब string handling का ये मतलब है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल अगर उसके अंदर में लेट्स से फॉर इंस्टेंस नेम एक वेरिएबल है, एंड इन दिस नेम वेरिएबल आई हैव टू स्टोर समबडीज नेम, लेट्स से मैं अहमद का नाम स्टोर करता हूँ, तो अहमद मैंने ये लिख दिया विद इन द कोटेशन मार्क्स। अब आई डू नो कि दिस अहमद करंटली इज व्हाट, इट्स ऑफ द डेटा टाइप स्ट्रिंग, राइट? तो मैंने शुरू में जब भी कोड लिखूंगा ना, दिस इज ओनली फॉर द 15 मार्क, सही है, दिस इज ओनली फॉर द 15 मार्क। बाकी क्वेश्चन में यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर इट, apart from the fact if you're asked to declare it, that's a different story, but usually you don't declare it in those smaller 3 or 4 marker questions. But अगर 15 marker question है तो आपने ये declare करना होता है, like if I have to declare it, मैं क्या करता, I would use the keyword declare followed by the name of the variable which will be name, फिर I will be putting up a colon, and यहाँ पे कौन से data type मैं लिखूंगा, I'll be writing it as string. बट नाउ हमने जो सूडो कोड बनाना है उसके अंदर इस स्टेप के बाद ना वी हैव मल्टीपल फर्दर स्टेप्स। पहला स्टेप ये होगा कि यार फाइंड, ये बताएं हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट लाइक आप खुद उसको स्पेसिफाई कर दो, या इफ लेट्स से आप इनपुट लेना चाहते हो यू कैन आल्सो डू इट लाइक इनपुट नेम। सो इफ आई डू इट लाइक इनपुट नेम, उस सिनेरियो में जो भी बंदा टाइप करेगा दैट इज गोना गेट इनटू द वेरिएबल नेम। नाउ अगर इसके मैं आपको फर्दर सिनेरियोज बताऊं, फर्स्ट मैं आपको ये बोलूं कि यार राइट अ कोड जो कि इतना तो कर रहा है
but also find the number of characters in the variable. मतलब अगर ये मैं ये बोलूँ एक प्रोग्राम मैंने बना दिया, उसके अंदर अगर मैं मास को इनपुट करूँ तो प्रोग्राम मुझे बताया इट्स 4 कैरेक्टर्स। अहमद को करूँ तो 5, इसी तरीके से मैं रेहान को करूँ 5, मनाल का भी सैफुल्लाह को करूँ तो दैट विल बी अ वे लार्जर नंबर, राइट? सो इस तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने जानने हो तो मैं क्या करूँगा? अब उसके लिए एक तो ये कि यू गो एंड स्टार्ट डूइंग इट द डिफिकल्ट वे वेयर यू नीड टू काइंड ऑफ राइट द फुल कोड कि यार ये क्या हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो प्रोग्रामर्स ने किया गया दे ऑल्सो दिस इज समथिंग जो कि आप लोग को अलाउ है, व्हाट सीआई एग्जामिनर्स डिड वाज कि दे अलाउड यू गाइस टू यूज सम प्री डिफाइंड फंक्शंस। अब ये हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस है जो कि आप अपने कोड में यूज करोगे, क्योंकि आपको वो डायरेक्टली बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन मे बी एक्स वाई जी स्टेप और एक्स वाई जी वेरिएबल या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू बी मेकिंग यूज ऑफ प्री रिटन फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस करो। प्री डिफाइंड फंक्शंस आर द वन जिसको आपने कोई फिर से लिखना नहीं होता, आप डायरेक्टली उसको लाते हो, यू जस्ट राइट इट एंड वो आपका काम कर लेता है। लाइक फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू फाइंड हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वेरिएबल नेम, तो व्हाट आई कैन डू इज कि इसको मैं थोड़ा सा अगर यहाँ से ही मैं यहाँ से नहीं बल्कि ऊपर से मैं कॉपी कर लूँ। लेट्स से मैं इसको यहाँ से कॉपी किया एंड आई पेस्ट इट अप हियर। हाउ डू यू पेस्ट इट मैन? ओके या सो नाउ इफ आई पेस्ट इट अप हियर एंड आई नीड टू फाइंड कि यार इसकी लेंथ क्या है, तो उसको करने का तरीका ये होगा कि फर्स्टली आई हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर द लेंथ, राइट? सो इफ आई क्रिएट अ वेरिएबल लेंथ या फिर लेंथ की जगह हम ये भी कर सकते हैं, नम कर दो नम नम के अंदर हम स्टोर करें व्हाट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उसके लिए मैं एरो डालने के बाद आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ अ प्री डिफाइंड फंक्शन व्हिच इज लेंथ। सो यू आर गोइंग टू बी राइटिंग द वर्ड लेंथ एंड लेंथ के अंदर आप इस तरह ब्रैकेट ओपन करके यू आर गोइंग टू बी राइटिंग द वेरिएबल नेम। सो नाउ योर कंप्यूटर इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस होल स्टेप इन अ वे कि वो सबसे पहले करेगा ये, इट इज गोइंग टू सी ओके you made use of this predefined function which is basically regarding finding the specific length of something, and आप किस चीज की लेंथ ढूंढना चाह रहे हैं, you're trying to find the length of a variable। तो अब वो करेगा क्या, आपका जाएगा कंप्यूटर उस वेरिएबल को ओपन अप करेगा, ओके नेम इसके अंदर स्टोर्ड है एम, देन इट्स गोना काउंट ओके ए 1 2 3 4 5। सो इस फंक्शन का जो काम है ना उसको पता लग जाएगा कि ओके the variable name has basically 5 characters, and so this whole code basically converts into the number 5, and the number 5 is then eventually stored in your variable num। so इसके अंदर क्या value आ गई 5, and this is how basically your whole mechanism of क्या कहते हैं लेंथ फंक्शन वर्क्स। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको वेरिएबल की कॉन्टेक्स्ट में करो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार आप मुझे ये बताओ कि एक वेरिएबल है एक्स, इस वेरिएबल के अंदर हमने एक चीज स्टोर नहीं की, आई एम लाइक डायरेक्टली मुझे बताओ लेंथ एंड उसके अंदर मैं कर दूं इस तरह ब्रैकेट और अंदर मैं लिख दूं कंप्यूटर साइंस। नाउ द फंक्शन अगेन विल ऑल्सो डू द सेम थिंग कि अगर वेरिएबल है तो ये वेरिएबल को ओपन करके वेरिएबल की वैल्यू को देखकर आपको फाइनल आंसर देगा, एंड इफ इट्स नॉट अ वेरिएबल एंड यू काइंड ऑफ डायरेक्टली पुट इन द वैल्यू विद इन द फंक्शन, तो आपको डायरेक्टली जो आपने पुट इन किया उसके आंसर देगा। नाउ इफ वी काउंटेड यू कैन से दैट वी हैव 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो यू माइट बी वंडरिंग कि हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो 15 है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी 15, इट विल बी 16। व्हाई? बिकॉज योर कंप्यूटर इज आल्सो गोइंग टू आइडेंटिफाई द स्पेस बार as a separate character, so it's going to be 15 plus 1 which will get you the final answer as 16। so this is very very important कि आप इसको मिस ना कर लो, सही है? so this is one function जो कि आपको पता होना चाहिए। and why do we call it string handling? because all these functions जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, all of this are being applied on variables that have the data type of string। so if your data type is not string, if it's not something which is storing string values, you cannot make use of these functions। like अब ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपको ये बोलूं कि there is this number 123 and you're like length 123, this will not work, this is wrong। why? because 123 is an integer,
whereas this function only works for string. सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि यार whenever we are making use of these specific string handling related functions, तो आपके जो भी यहाँ पे values होंगे ना, उनका डेटा टाइप पी स्ट्रिंग हो. इट शुड नॉट बी कि आपका डेटा टाइप इज ऑफ सम अदर डेटा ऑफ सम अदर टाइप, और आप फंक्शन जो यूज करें वो आपके स्ट्रिंग के लिए हो. सो इफ वी हैव टू फाइंड, लेट्स से फॉर इंस्टेंस के 1 2 3 के कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, उसको करने का टोटली दूसरा तरीका है. मे बी कन्वर्ट इंटीजर इनटू स्ट्रिंग एंड फिर स्ट्रिंग को अप्लाई करो. बट इट कैन नॉट बी लाइक आप लेंथ 1 2 3 लिखो एंड यू आर गोइंग टू बी गेटिंग द आंसर 3. वो आपको एरर देगा एंड इसके ऊपर आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो जाएंगे. सो डू इंश्योर कि आप इसके साथ केयरफुल रहें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, केयरफुल, कि आप इसमें कोई गलती एटलीस्ट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कर लो तो आपके वैसे ही फॉर नो रीजन मार्क्स कट ऑफ हो जाते हैं. सो जस्ट लाइक दैट, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अब ये तो एक हमने आसान सा कर दिया लेंथ. अब अगर एक दूसरा मैं आपको बताऊं कि आई हैव दिस वन प्रॉब्लम, कि मैंने कोड लिखना है जिसके अंदर शायद 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 बंदा अपना नाम लिख रहा हो MAAZ, बट आई वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम जिसके अंदर मैंने कोई ऐसा एक्शन करना है फॉर विच आई नीड एवरीथिंग एज कैपिटल MAAZ. सो आइदर आई कैन आस्क द यूजर के भाई आप मुझे सारा कैपिटल इनपुट करो, या व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन मेक यूज ऑफ अ फंक्शन दैट कैन बेसिकली कन्वर्ट ऑल द लोअर केस कैरेक्टर्स इनटू अपर केस कैरेक्टर्स. सही. सो हमारे पास जो दूसरा फंक्शन जो आप लोगों को पता होना चाहिए ना, दैट इज बेसिकली अपर केस. एंड अपर केस फंक्शन का जो वाहिद आपके पास फंक्शन है वो ये है, टू कन्वर्ट ऑल लोअर केस कैरेक्टर्स इनटू अपर केस. मतलब अगर मैं इसी का आपको एक कोड लिखूं कि फॉर इंस्टेंस हमें कुछ नहीं पता एक बंदा क्या इनपुट करता है. अ पर्सन इज इनपुटिंग अ रैंडम नेम. ओके, इनपुट नेम. सो आई डू नो द पर्सन इज इनपुटिंग नेम, बट आई डू वांट कि जो भी मेरे डेटा मेरे पास इनपुट हो रहा है दैट इज इन अपर केस फॉर्म. अब मैं अगर आउटपुट करके उसको बोल भी दूं, देयर इज स्टिल अ चांस कि बंदे को वैसे ही मजा आ रहा है कि वो लोअर केस डाल दे जस्ट टू इंश्योर कि कंप्यूटर के अंदर कोई एरर आ जाए. But what we can do is, as programmers, why not make use of this function that can automatically convert even if we have a lowercase into some uppercase character. So हम कर ये सकते हैं कि we can make use of the function like u case. इसके जो वर्डिंग है जैसे हमारे ऊपर वाले के अंदर ये आ रहा था ना कि वी आर मेकिंग यूज ऑफ लेंथ, एंड उस लेंथ को हम कहीं पे स्टोर कर रहे थे. बट डेफिनेटली एल केस को अगर मैंने लेट से किसी चीज के अंदर स्टोर करना है तो आई कैन डू लाइक क्रिएट, मैं एक तो ये डायरेक्टली कर सकता हूँ अगर मैं इस तरह कर दूँ एल केस नहीं सॉरी यू केस, माय बैड, एल केस लोअर का हो जाएगा, उसको बाद में करते हैं यू केस. एंड देन यू कैन हैव द ब्रैकेट्स ओपन अप, यू जस्ट राइट द वेरिएबल नेम, एंड ये करेगा ये कि जो इसका जो भी आंसर आएगा ना, it is going to be upper case of what's the value stored within the name variable. So अगर name के अंदर आ रहा हो MAAZ, it is going to convert it into MAAZ but in capital form. अब सेम चीज है लेकिन केस को बदल दिया. बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सेइंग कि यार अगर आपने यू केस नेम करना है ना, तो इसकी वैल्यू आपने स्टोर कर दी ना किसी न्यू उसमें. सही है. अब इसको करने का ये कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मैं एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ, आप एक न्यू वेरिएबल डिफाइन करो. अगर मैं यहाँ पे सबको हटा दूं, तो सबसे पहले आप कर दो, मैंने इनपुट लेना है बंदे से नाम का, बट आई नीड टू इंश्योर कि मैं अपर केस उसको ना अलग करूं. सो आई कैन क्रिएट अ वेरिएबल जिसको मैं शुरू में डिक्लेयर कर सकता हूँ, डिक्लेयर अपर नेम. एंड इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग. व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी स्टोरिंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. सही है, मल्टीपल कैरेक्टर्स. सो अगर इसको मैं कर दिया डिक्लेयर अपर नेम स्ट्रिंग, देन आई एम गोइंग टू बी टेकिंग एन इनपुट which will be input name. And now इसी name के अंदर I'm not sure whether it's going to be having all lowercase all uppercase or maybe a mixture of both. So what I can do is कि मैं upper name वाले जो वेरिएबल मैंने ऊपर डिफाइन किया है अपर नेम, इसी के अंदर व्हाई नॉट डायरेक्टली पॉइंट इट लाइक दिस. एंड जो मैंने ऊपर फंक्शन अपर केस का पढ़ा है विच इज यू केस करके आई कैन राइट द वेरिएबल नेम विच इज नेम. सो वट एवर वॉज इन देयर बिफोर, इवन इफ इट्स ऑलरेडी MA, सो MA को ये MA ही बना देगा कैपिटल में, कोई इससे मसला नहीं है. बट इफ इट इज समथिंग लाइक मिक्स और मे बी ऑल ऑफ देम आर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स, तो इट इज गोइंग टू इंश्योर कि वो उसको कन्वर्ट कर दे इनटू अपर केस
कैरेक्टर्स। अब ये दो तो काफी आसान है। इसी तरीके से अपर केस का अगर हमने करना हो ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे टेल यू टू कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स इनटू लोअर केस, सही है। सो अगर वो आपको ये बोले कि कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू लोअर केस, विच जिसका फंक्शन यही है कि convert everything into lower case character, जैसे मैंने ऊपर to convert all lower case characters into upper case, so it is basically upper case or mix into लोअर केस। सो अब इसको करने का तरीका ये है कि सेम टू सेम जो हमने ऊपर पढ़ा है, सेम टू सेम जो ऊपर पढ़ा है वही चीज है, बट रादर देन मेकिंग यूज ऑफ द वर्ड यू, आई कैन डायरेक्टली मेक यूज ऑफ द वर्ड एल। सही है? तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, आई कैन सी कि इट्स काइंड ऑफ बाकी कोड तो मेरा सेम ही रहेगा। एक जो मैंने चेंज करना है वो यहाँ पे अपर की जगह में लिख देता हूँ लोअर, सही है, इस तरह कर देता हूँ लोअर नेम। एंड सेकंड में ये कर सकता हूँ कि इनपुट नेम के बाद अगर मैं इसको स्टोर करना चाहूँ इन लेट से लोअर नेम, तो आई कैन डायरेक्टली डू इट लाइक दिस, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा एल केस नेम। So L stands for the word lower, whereas U stands for the word upper. So L case और अंदर में वेरिएबल का नाम नेम डाल दूंगा, and it's going to basically work in the same way कि अब आपका अगर शुरू में it's even like MAAZ, so it is basically going to convert all of this into MAAZ. So ये आपके तीन ऐसे functions है जो कि आपके बहुत kind of use हो सकते हैं, and you need to ensure कि you are well aware of all of them. After lowercase and all the other sort of functions, जो हमारा एक आखिरी string manipulation का function आता है ना, that is basically substring, which is kind of the most difficult one. अब substring क्या होता है? Let me write it first. Substring, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई there is this long sentence, और मे बी मैं माई फुल नेम इज मे बी मास, एंड आगे मैं मुनीर कर देता हूँ बट विद स्पेस कैरेक्टर, बट आई आस्क यू कि भाई मुझे ना ये मास वाला पार्ट को ना अलग कर दो इनटू फर्स्ट नेम। लेट्स से अगर फर्स्ट नेम कर दो, फर्स्ट नेम के अंदर मास कर दो, एंड जो मेरा लास्ट नेम है, लास्ट नेम उसके अंदर आप डाल दो मुनीर। Now, if I let's say for instance want to do something like this, जिसके अंदर मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग करना चाहूँ, और ये टोटल नाम जो मेरा ओरिजिनली है ये स्टोर्ड है एक ही किस्म की स्ट्रिंग में, एक ही किस्म का वेरिएबल है जिसके अंदर ये स्टोर है, तो मैं कैसे करूंगा? तो इसको करने का ये कि तरीका होता है कि व्हेनेवर आई हैव टू काइंड ऑफ फेच अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक वेरिएबल ऑफ द डेटा टाइप स्ट्रिंग, आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस सबस्ट्रिंग फंक्शन, जो कि करेगा ये कि अगर मैंने कोई इनपुट लिया, या फिर लेट्स से मैं ये बोल दूं कि इनपुट अगर ना भी लिया, अगर मैं ये बात करता हूँ कि सबस्ट्रिंग करो मास, मुझे इस बड़े ये एक वेरिएबल है, ये मास है, इसको मैं लेट से इसको इरेज करके आपको सही से कर देता हूँ। देयर इज दिस वेरिएबल व्हिच हैज द नेम ऑफ नेम, सही नेम, एंड दिस हैज द वैल्यू मास मुनीर, MAAZ with a space and then Munir. Okay, I have this. I do have Muhammad at the start too, but वो बहुत लंबा हो जाएगा, so let's do it like Maaz Munir. Okay, now I want to write a code जो कि करेगा ये कि जो Maaz है, Maaz को fetch out करके store कर देगा in a variable जो कि मैं कर लेता हूँ fn के नाम से, सही। So why not declare fn, which is basically first name for instance, and उसका data type क्या होगी? It's going to be string, right? So if I want to conduct this operation of like fetching out the four first letters, तो मैं कैसे करूँगा? उसको करने का तरीका ये, मैं वही अपने built-in function को use करूँगा which is substring. So I will write something like fn के अंदर आपने value store करनी है, and क्या value store करनी है? You need to write the keyword substring, एंड आफ्टर राइटिंग द कीवर्ड सबस्ट्रिंग आपने पहले ये लिखना है कि आप किस चीज की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। लाइक इस सिनेरियो में इट्स गोइंग टू बी नेम, राइट? सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम। फिर आपने बताना है कि भाई आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, whether you want to start from the first character, second character, third, fourth and so on, like मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इन दिस सिनेरियो अगर देखा जाए, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, राइट? सो मैं 1 लिख दूंगा, एंड देन मैंने कहाँ तक इसको एक्सट्रैक्ट करना है, सो 1 2 3 4, तो आई नीड टू एक्सट्रैक्ट इट फॉर द 4 मोर कैरेक्टर्स उसके बाद वो। तो मतलब अगर मैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट करूँ, वो करता क्या है? इसका बेसिक मतलब ये है कि वो बोल रहा है कि अच्छा आपने किस चीज का करना है वो यहाँ पे लिखो। वो जो इतना आपने नंबर बड़ा नाम दिया जिसके अंदर आपने एक्सट्रैक्शन करनी है, उसमें आप
कहाँ से एक्सट्रैक्शन चाहते हैं, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी पर्सन माइट बी सेइंग कि आप फर्स्ट कैरेक्टर से करो। व्हाट इफ आई टेल यू कि भाई आपने ये लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको अगर मैं यहाँ पे एल एन कर दूं लास्ट नेम, एंड आई टेल यू कि भाई मैंने लास्ट नेम को करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? I'll be writing the same function substring. Then I will be writing the name of the variable, which will be name. And after this मैंने करना ये कि मैं बताऊंगा कि यार मैं कहाँ से start करना चाहता हूँ. I'm basically willing to start from the fifth position, right? आप चाहते हो कि आप यहाँ से start हो जाए fifth. Fifth बनेगा most probably. हाँ fifth ही बनना चाहिए. Let me count. Yeah, it's going to be fifth. So अगर मैंने fifth से start करना है तो fifth नहीं, sorry, it's going to be sixth, my bad. क्योंकि अगर fifth किया तो उसमें तो space भी आ जाएगा, तो it has to be the sixth one. So sixth character से मैंने start करना है, फिर उसके बाद मैंने कितने करने? 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 उसके बाद करने. तो I'll be writing this code जो कि क्या करेगा कि मेरे fn को अगर मैं आगे let's say इसी कोड के अंदर मैं आउटपुट करना चाहूँ, अगर मैं अभी इसी को आउटपुट करना चाहूँ, आई एम लाइक output, and I write the word fn followed by ln. तो if I run this code, I will be saying कि मेरे स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आ रहा है mass, which is basically coming from lfn, which is fetching out my first four characters, and then मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा है मुनीर, जो कि मेरा एल एन से प्रिंट हो रहा है. सो व्हाट आई डिड वाज आई लिटरली डिवाइडेड दिस होल स्ट्रिंग वेरिएबल इनटू टू पार्ट्स, मेकिंग यूज ऑफ दीज टू फंक्शंस. अब इसका अगर मैं आप लोग को जनरल एक आपको फॉर्मेट बताऊं, तो द फॉर्मेट फॉर सबस्ट्रिंग इज द कीवर्ड substring, then brackets variable name, which is variable name, then you kind of write the start, and then you write num of कैरेक्टर्स, कि मतलब आपने स्टार्ट किस कैरेक्टर से करना है, लाइक इस सिनेरियो में इट वाज द फर्स्ट कैरेक्टर, फिर उसके बाद आपने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फेच करना है, 4, तो 1 2 3 4 इस तरह. सही. सो ये आपका हो गया सबस्ट्रिंग का. लोअर केस करने का जो आपके पास फॉर्मेट आता है, दैट इज बेसिकली एल केस एंड देन योर वेरिएबल नेम, वेरिएबल. And if I have to do it for the uppercase, so it's going to be exactly the opposite with a U case followed by a variable name. And if I have to do it obviously for the length one, तो length वाले तो मैंने आपको बता दिया, it has to be length name. So यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, मैंने लिखा नहीं है by the way, length. So इसका तरीका ये है कि you need to write the length keyword in capital. अब आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि whenever I'm making use of some predefined functions, ओके या डेफिनेटली डू वॉच दैट, वरना आपको इसकी समझ नहीं आएगी. वो सारा अपलोड हो चुका है, यू शुड गो वॉच दैट, तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी. बट वेन एवर यू केस वेरिएबल, बिल्कुल. सो बट वेन एवर आई एम काइंड ऑफ मेकिंग यूज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कीवर्ड लाइक इनपुट, आउटपुट, यू केस, एल केस, सबस्ट्रिंग, यू काइंड ऑफ नोटिंग कि मैं उन सबको कैपिटल वर्ड्स में लिख रहा हूँ. अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको कैपिटल वर्ड्स में लिखो, but it's recommended to write it in capital words so that it can be identified as a keyword. तो अगर हम इसको इस तरह लिख लूँ ना, मैं अगर लेंथ को मैंने कैपिटल लिखा, but if I write it like this, length string, you're still going to be getting marks. Why? Because a pseudocode never has a set pattern. But it's recommended as per your CIE course that if you have to write any sort of keyword, try to write it in a capital word manner, ताकि वो upper case में examiner को समझ आए कि you are not referring to some normal variable or maybe some text or maybe something you're trying to output, but in reality you're kind of basically making use of a variable, of a specific keyword. So ये काफी जरूरी है कि आपको ये दो तीन फंक्शंस का अच्छे से पता हो. एंड इसके बगैर जो आपके ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं, वो अभी हमने देखना है. कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आपने कोई ऐसी चीज करनी है जिसके अंदर, बल्कि वी काइंड ऑफ ऑलरेडी डिस्कस दिस, सही है, तो इसमें तो कोई नई चीज है नहीं, ये तो हमने डिस्कस पहले से किया हुआ है. कि एंड और नॉट क्या होता है. सही है, वी डिस्कस्ड हाउ यू कैन राइट रेज टू द पावर mod if. Okay, mod if is something I didn't do. So अब मैं आपको ये बोलूं कि we need to write a code जिसके अंदर you need to find, kind of create a calculator जिसके अंदर you take two numbers, एंड अगर मैं ये बोलूं कि मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से,
या 11 को करता हूँ 3 से डिवाइड, सो ये किस तरह होगा? आई विल बी लाइक 3 3s are 9 and then I'm getting 2. So what's this 3? This is quotient, right? And I see, okay, what's this 2? This is remainder. Now, how can I make a program जिसके अंदर मुझे ये पता लग रहा हो कि quotient क्या होगा, remainder क्या होगा? So whenever I need to find the quotient of a specific calculation or a remainder of a specific calculation, we make use of these two pre-written, again predefined functions known as mod and diff. सही, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? Mod and diff को. So this is basically known as mod slash diff. So if I want कि मेरे पास ये आंसर 3 आ रहा हो, like for instance I do like 11 div 3, this is basically going to be giving me कि 11 divided by 3 के quotient का क्या आंसर है, which will be basically what it is going to be giving me the value 3. But at the same time अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार मुझे ये remainder की value चाहिए, तो I can write it as 11 mod 3 and you are going to be getting the answer as remainder of 2. अब ये जब भी आपके एग्जाम में काफी इस तरह के सिनेरियोज आएंगे वेयर यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर यूजिंग div एंड mod टू सी कोई रिमाइंडर या क्वेश्चन है या नहीं. अब किस तरह क्वेश्चन में आ सकते हैं? लेट्स से आई टेल यू कि भाई अ पर्सन इज गोइंग टू बी इनपुटिंग सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस, num of page, say एक specific number of pages and we don't know, it can be 100, it can be 103, it can be 104 or any such number. But I do know कि यार हर 10 pages के लिए, हर 10 pages के लिए I will be charging that person 5 rupees. बट what if अब आई गेट दैट कि अगर उसने 50 पेजेस किए तो आई विल बी चार्जिंग हिम 25 रुपीज. बट अगर उसने 53 पेजेस किए ना, तो मैं स्टिल 10 पेजेस वाले एक एक्स्ट्रा उससे लूंगा, विच विल बी 25 प्लस 5, तो मैं उससे 30 लूंगा. क्यों 30 लूंगा? क्योंकि 50 पेजेस के उसके 25 रुपए बन गए. उसके बाद अगर वो 3 करते 4 करते, उससे जो पैसे लिए जाएंगे वो कांस्टेंट 10 पेजेस के चार्ज किए जाएंगे. So even if he has to do 53 or a 54 or a 55 until or unless he doesn't cross 60, उसने क्या देना? उसने फ्लैट 30 ही देना होगा. But how do I get to know कि यार 25 है 30 है क्या है? Like if I create a program जिसके अंदर I only deal with integers and I know कि if I divide 53 by 5 I might not be getting a proper number, तो मैं उसको किस तरीके से ढूंढूंगा? तो उसके लिए कर हम ये सकते हैं कि we can make use of this remainder function. लाइक अगर मैं ये बोलूं कि हम इसी को कोड कर दें जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, इट्स गोइंग टू बी इनपुट num of pages and this is how you 15 markers are usually tested, right? So आप input कर दिए number of pages. अब हम करेंगे ये कि हम देखते हैं कि कितने हमारे पास वो pages के groups बन रहे हैं. लाइक एक ग्रुप बन रहा है क्योंकि 10 pages के हमने 5 देने, so this is like kind of one group, right? So हमारे पास कितने इस तरह के ग्रुप बन सकते हैं? So अगर मैं ये देखूं ग्रुप, तो आई कैन सी अगर मैं ग्रुप के अंदर ये, बल्कि इससे भी पहले व्हाट वी कैन डू इज कि हम एक काम कर लेते हैं. पहले मैं ये चेक करता हूँ कि यार ये फॉरन जो भी नंबर है ये 5 से 10 से डिवाइड होता भी है या नहीं. लाइक इफ इट इज समथिंग लाइक 54 by 10 and I'm getting like 5.4, so this means कि I need to have 5 groups which means 25 उसके, क्योंकि 0.4 मेरे पास एक्स्ट्रा है तो I will be taking 5 rupees for that too. But what if I have directly something like 50? So 50 अगर हो and वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो I will be only having 5 groups which mean I will be paying 25 rupees. अब इसको कोड करने का बेसिक तरीका ये होगा कि I can make use of if statement. किस तरह? इस तरह कर लेते कि if num of pages, इसको ब्रैकेट में आप बंद कर दो, if num of pages mod 10 is equal to 0, then अब आप सोच रहे होंगे कि देन के बाद तो चले समझ आ रही है, बट व्हाट डिड वी डू अप हियर? इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि आई हैव टू डिवाइड 50 विद 10, व्हाट इज द कैलकुलेशन गोइंग टू लुक लाइक? इट्स गोइंग टू बी लाइक अ 5 इज गोइंग टू कम अप हियर, फिर 50 यहाँ पे आ गया एंड वी गेट 0 अप हियर, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ रिमाइंडर एंड योर मॉड फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिटर्निंग अ रिमाइंडर. तो जब भी मैं मॉड किसी चीज के साथ कर लूँ आंसर एज 0, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ द फैक्ट कि यार ये नंबर फुली डिवाइड हो गया. एंड अगर वो फुली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इफ एनी नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय 10 तो उसके एग्जैक्ट ग्रुप्स बन रहे हैं, राइट? नम ऑफ पेजेस मॉड 10 से तो मुझे पता लग गया कि ओके इट इज अ फुल होल नंबर, इसके अंदर कोई और मेरे पास सीन है ही नहीं. नंबर ऑफ पेजेस मॉड 10, अगर मैं बोलूं कि 25 मॉड 10, तो इसका यही मतलब हुआ कि मेरे पास 2.5 बचता है. सो मेरे मॉड
मॉड जो है, सॉरी 2.5 नहीं, मेरे पास जो मॉड है वो क्या, रिमाइंडर, आई हैव रिमाइंडर ऑफ 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इट्स नॉट इक्वल टू 0 फिर मैं इसको अलग से डील करूंगा, बट व्हाट इफ इट इज इक्वल टू 0? अगर ये लेट्स से मैं बोल दूं कि इट्स इक्वल टू 0, देन आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट एज, कॉस्ट के अंदर आपने कर देना है कितने में ले लूँ, 5 रुपीज, 5 मल्टीप्लाई बाय कितने पेजेस मेरे पास ग्रुप के बन रहे होंगे, सो इट विल बी नम ऑफ पेजेस, अगर वो 100 हुए या जो भी हुए, नम ऑफ पेजेस। एंड नाउ आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ द डिवाइडिंग फंक्शन, डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज 10 is basically the same thing कि अगर मैं इसको 10 से 5 करूं, so this answer is basically div वाला and this answer is basically mod वाला, right? div and mod। अब अगर मैं इसको थोड़ा नीचे जाकर आपको बाकी अच्छे तरीके से बताऊं, तो हमने ये देख लिया कि अगर कॉस्ट 5 इंटू नंबर ऑफ पेजेस डिफरेंट, इसका ये तभी होगा जब हमारे पास एग्जैक्टली 50 या 60 पेजेस हो या 70 पेजेस हो। बट व्हाट इफ आई हैव 53? अगर 53 वाली बात ट्रू होती है तो उस सूरत में तो देन से हम एल्स पे आ जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ पेजेस इज नॉट इक्वल टू 0। इफ इट्स नॉट इक्वल टू 0 तो हम ये कर लेते हैं कि वी नो वन थिंग, कॉस्ट के अंदर सबसे पहले हम कर लेते ये कि हम कॉस्ट के अंदर तो ये डाल देंगे, कॉस्ट 5 इंटू नम ऑफ पेजेस, नम ऑफ पेजेस डिफ 10। जी जी बस 2 मिनट। डिफ 10, अगर मैं ये चीज इस तरह कर रही हूँ 5 इंटू नम ऑफ पेजेस डिफ 10, तो इसको करने का बेसिक जो जो बेसिक वो है ना, वो ये है कि अगर मेरे पास 53 भी हो, 53 को मैं 10 से कर दूं, आई गेट 5 अप हियर, जो कि 50 आ गया, एंड आई गेट द रिमाइंडर एज 3। अब ये 5 का तो मेरे पास आ गया कि 5 को आप 5 से मतलब 25 आ गया, बट जो मेरे पास रिमाइंडर है उसको डील करने के लिए आई विल बी एडिंग 5 अगेन। सो व्हाट आई कैन डू इज कि कॉस्ट के अंदर में फिर से कॉस्ट प्लस 5 कर दो, and then I can like kind of end the loop, end if करके, end if, and I can just output the value of cost, output cost. And this is how you're going to be dealing out with these numbers. Now, it may seem kind of complex at the first glance, but if you look at it, it is making very good sense कि अगर यार इसको हम ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन इस तरह के, अगर हम बोलते हैं कि यार 72 पेजेस है, so 72 पेजेस का ये मतलब होना चाहिए कि I have 7 groups, जिसके ऊपर 7 इंटू 5 का वो लगे हैं, क्योंकि एक ग्रुप मेरे पास नहीं भी है तो लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो उसके लिए हमारे पास काइंड ऑफ 8 ग्रुप्स की पेमेंट होगी, विच मीन्स कि मुझे एंड में 40 आंसर आना चाहिए। सो अगर इफ आई इनपुट 72, आई विल बी लाइक इस 72 को अगर हम मॉड 10 करें, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करो 72 मॉड 10, यू सी दैट आई गेट 70 एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ मॉड फंक्शन टू बी 2, इट्स नॉट इक्वल टू 0। सो इफ इट्स नॉट इक्वल टू 0 हम एल्स में चले जाते हैं, राइट? एल्स, एंड एल्स के अंदर हम सबसे पहले करें कि आपने 5 को मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ पेजेस के साथ। इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय 10 के साथ 5, इसका ये मतलब है कि हम देखते हैं कि कितने होल ग्रुप्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं वो कितने होंगे, वो ये होगा कि हमारे पास 7 है, तो आई सी लाइक 5 इंटू 7 इज 35, एंड देन आई सी क्योंकि क्योंकि हम एल्स वाले स्टेटमेंट पे आए, दिस मींस कि आई डू हैव लाइक सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा पेजेस नाउ, दिस कैन बी 2 3 4, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पेजेस ना होते तो ये तो होल नंबर आता है, मेरे पास कोई रिमाइंडर में कुछ बचता ही ना। तो क्योंकि वी हैव अ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पेजेस, तो हम क्या कर लेते, उसकी कॉस्ट भी इसके अंदर ऐड कर लेते। तो जो प्रीवियस हमारे पास 35 यहाँ पे स्टोर हो गया फॉर द टोटल होल नंबर ऑफ ग्रुप्स, उसके बाद जो लिमिटेड एक आध नंबर ऑफ पेजेस का है उसको हम अलग से इसमें ऐड कर लेते, तो लाइक 35 प्लस 4, एंड आई गेट द फाइनल आंसर एज 40, एंड उसी को मैं जब आउटपुट करूंगा तो आई गेट द आंसर एज 40 ऑन माई स्क्रीन, विच इज इक्विवेलेंट टू द वन जो मैंने आपको शुरू में प्रपोज किया था। And this is how basically you are going to be making use of mod and div operators in your calculation. Now, easy scene, Ahmed. Yeah, of course. No worries, no worries, no worries. I'm also kind of ending it. So ये हमारे पास ये एक चीज़ आ गई, and then the final part before moving on, कल हम करेंगे arrays इंशाल्लाह। बट नाउ अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हम if statements यूज़ करते हैं, but there is one other concept which is known as nested ifs. अब what nested ifs all about? Nested if इसको बोलते हैं कि if within a if statement within an if statement, within an if statement. Like for instance, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि if age is less than 18, then if age is greater than 13, then then output, output teen, else output child। अब ये क्या हो रहा है, अगर आप इसको देखो
इसके अंदर क्या चीज हो रही है? इट इज बेसिकली मेकिंग यूज ऑफ टू इफ स्टेटमेंट्स। एक हमारे पास इफ स्टेटमेंट ये आ गया, एक हमारे पास इफ स्टेटमेंट ये हो गया, और इसी इफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के अंदर हमारे पास एक दूसरी इफ स्टेटमेंट आ गई। सो इट्स काइंड ऑफ वन इफ स्टेटमेंट, and within one if statement we are also bringing in one other if statement. अब होता है वैसे तो ये कि if age is less than 18 you need to do some execution up here, but we kind of brought in another if statement into discussion कि यार अगर ये होता है, एंड फिर उसके अंदर फिर अगर फिर कोई और चीज होती है, एंड देन यू राइट द कोड। दिस यूसेज ऑफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स एट वंस इज व्हाट वी कॉल एज nested if. This is nested if. Why? Because we are kind of nesting multiple ifs. Nest किस तरह बनता है? Bird nest आपने देखा होगा, एक के अंदर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, and like it's going to become a nest like this, right? So it is kind of resembling the same thing कि हम multiple if statements को एक दूसरे के साथ interconnect करें, and when we are interconnecting multiple if statements into a single block we call it as a nested if. तो अगर आपको एग्जाम में कभी बोले identify nested if, तो आपके जहन में डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए कि नेस्टेड इफ का ये मतलब है कहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट्स के अंदर ही एक दूसरे इफ स्टेटमेंट को ब्रिंग इन करें। सो वी हैव इफ एज इज लेस देन 18 एंड देन वी काइंड ऑफ ब्रिंग इन अनदर इफ स्टेटमेंट विद इन द सेम कोड। दिस इज व्हाट वी कॉल एज नेस्टेड इफ। सही है। एंड ये आपको एक पता होना चाहिए कि इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू टू। अगर इसके अंदर मैं फर्दर और करना चाहूँ ना, और करना चाहूँ, देन के बाद मैं यहाँ पे अगर लेट से एक थर्ड उसको फिर ले आऊँ, एंड देन के बाद मैं एक फिर करना, देन इफ एज इज greater than 17, then output you will be 18 next year. You will be 18 next year inshallah. तो अगर इफ आई राइट इट दिस वे, तो इट इज अगेन मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट ला रहा हूँ, उसके अंदर फिर इफ स्टेटमेंट ला रहा हूँ। सो व्हेनेवर आई ब्रिंग इन मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स इनटू अ सिंगल ब्लॉक, व्हेन आई सी सिंगल ब्लॉक, इसका ये मतलब है कि ओरिजिनली जो मेरा कोड है वो तो एक ही उसमें स्टार्ट हुआ है ना। लाइक लुक एट दिस, इट स्टार्टेड अंडर द सेम इफ स्टेटमेंट, एंड एक ही ब्लॉक के अंदर, लाइक दिस इज अ सिंगल ब्लॉक, एक ही इफ स्टेटमेंट की चेन के अंदर आई एम ब्रिंगिंग इन अनदर इफ स्टेटमेंट एंड उसके थ्रू अनदर इफ स्टेटमेंट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज a nested if. सही। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट था कि आप लोगों को पता होना चाहिए। दे कैन काइंड ऑफ टेल यू एट सम ओकेजन्स कि आइडेंटिफाई नेस्टेड इफ्स। तो विद दैट we will be stopping up here. Tomorrow inshallah we will be starting off with the discussion related to arrays, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिससे मेजॉरिटी बच्चे बहुत डरते हैं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम कल इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस करें। वो कल तो है ही नहीं क्लास, माई बैड। मंडे को इंशाल्लाह, मंडे को वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग एरेज, एंड आई माइट post a minute small C video related to some content tomorrow. If not, to Monday ko see you guys, and maybe we have a sort of a longer session on Monday inshallah. Monday को थोड़ा सा हमारा शायद लंबा हो जाए because we need to discuss whole of arrays in great depth, and फिर उसके बाद बस या अच्छा अच्छा चलो easy scene. I won't be uploading anything, don't worry. But hopefully by Wednesday, which will be what, which is kind of 1st October, 1st or 2nd October, I will try my best to finish whole chapter number 8 and 7 तो हो ही गया। So हमारा 7 8 तो 1st 2nd October तक अगर ये सारा हो जाए हमारा, so we will be having a very good capacity of time to prepare for the other chapter number 9 and chapter number 10 before you have your October November examinations on the 22nd of October. So with that, I'm going to be ending the recording.